is not getting it. Okay, next slide. So, as I said, that vigilance or security को we cannot see in two watertight compartments. The vigilance अलग है और security अलग है. मैं समझता हूँ कि they are two sides of the same coin. So we have to look at them from the point of view of complementarity, not from the point of view of two poles apart concepts. And they are interdependent as well as interlinked also. And vigilance actually affects the overall matrix of security. जो एक पूरा सिक्योरिटी का जो एक वेब या पूरा सिक्योरिटी का जो एक सेटअप बनेगा उसमें विजिलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो इट आल्सो अफेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ अ सिक्योर्ड सिस्टम यू आर गोइंग टू मेक. सो वी मस्ट लुक एट बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स एज कॉम्प्लीमेंट्री. वी मस्ट लुक एट दिस कॉन्सेप्ट दैट दे contribute to each other. They are not concepts which should be looked at that they are different. जो आदमी vigilance अलग है और security अलग है. Next. So what are the levels of vigilance? Now I'll come. One is individual level, then the collective level and institutional level. Individual level, we all are vigilant when we are walking on the road. We are vigilant that we walk on the left side of the road. We don't violate roads if you are driving. You are vigilant that you don't overtake. You don't cross the yellow line. You don't cross. These are some of those. If you are at home, you take adequate precautions of your belongings. You take adequate precautions that nobody intrudes into your house and all. So those are, so the space for the individual vigilance will vary. It is very wide, but then you are vigilant about what does that particular space demands. So the narrative of vigilance at that particular space will be different. As an individual, you will have different. The second is that we also have a system of collective vigilance. When there are issues which affect not only an individual, affects the community as a whole. If I am a part of a residential complex, there could be such issues, there could be such, matters which require some kind of a vigilance to be adopted, not only by one individual, by the whole community. So, in many places, when you see in residential complexes, there are many, जो gated concept है, गेट लगाना चाहिए, इस टाइम पे ये खुलेगा या यहाँ से एंट्री को हम रेगुलेट करते हैं. दे आर बेसिकली इन द पैराडाइम ऑफ कलेक्टिव विजिलेंस. दैट यू आपने अपने घर पे तो ऑब्वियसली यू आर विजिलेंट दैट, बट टू इंश्योर दैट नथिंग हैपेंस इन द अदर हाउसेज आल्सो, you are able to mount some kind of a matrix of a collective vigilance. And what do I mean by institutional vigilance? Is a role actually. You are all part of an institutional vigilance. आप administrative officers हैं, आप registrars हैं, assistant registrars हैं, जो भी. So आपको, you are a part of a very important institution where you are supposed to also some kind of a vigilance. So that's an institutional vigilance. और इन तीनों का जो रोल, तीनों का स्पेस, तीनों का कंटेंट, तीनों का फॉर्म, तीनों का नेचर जो है वो अलग अलग है. सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, सबके कंसर्न्स अलग होंगे, सबको हैंडल करने का प्रोटोकॉल अलग होगा, सबका एसओपी अलग होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग होगा. व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस, देन यू आर सपोज्ड टू बी ऑपरेटेड थ्रू सम ऑफ दोज एफआर, एसआर. व्हाट आर दे? They are basically institutional vigilance को maintain करने का प्रोटोकॉल है. टाइप्स ऑफ विजिलेंस क्या मतलब? एक होता है प्रिवेंटिव विजिलेंस और एक होता है रिएक्टिव विजिलेंस. नाउ प्रिवेंटिव विजिलेंस ये होता है जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया कि आपने किसी चीज को विजुअलाइज किया कि अगर ये एक्शन हम इंस्टीट्यूशन में लेते हैं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. दीज आर दी possible consequences. So if I am not taking care of those consequences,
in a proactive manner, then there could be issues. It could affect the very basis of the institution. It could affect the very process itself. So you adopt such measures कि उस तरह की गलतियां नहीं हो, उस तरह की कोई त्रुटि नहीं हो, उस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं इमर्ज कर जाए. तो वो एक मतलब जिसको हम प्रोएक्टिव विजिलेंस भी कह सकते हैं और प्रिवेंटिव विजिलेंस. प्रिवेंटिव विजिलेंस इज टू इंश्योर दैट malfunctions, mistakes, other things don't occur. They don't occur. So you visualize that क्या क्या इसमें चीज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर एक कॉलेज में एक प्रिवेंटिव विजिलेंस होता है, हाउ डू यू इंश्योर दैट only the rightful persons gain entry inside the college? By college will have to issue a identity card. If you don't issue an identity card, everybody can enter and say that मैं भी इसी कॉलेज में हूँ. तो वो होके बाहर के भी हो सकते हैं. They can create problems also. They can have issues with the overall security of the system. तो उसको हैंडल करने के लिए आपने प्रिवेंटिव तौर पे ही पहले सोचा कि नो, I think to ensure that the college is meant only for the bona fide students who have paid fees, who are registered, who are enrolled, they only come. So you design a iCard. You design iCard and that you give it to. So that's a part of preventive vigilance. Guard, आपको gate पे you are detailing guards, you are detailing security guards. They are all part of the proactive and preventive vigilance, so that you ensure कि नहीं ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. और रिएक्टिव विजिलेंस वो होता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ इन इंडियन कल्चर वी आर मोर रिएक्टिव देन प्रोएक्टिव. हम रिएक्टिव ज्यादा होते हैं. एक बार कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो अब उसके बाद तो मतलब पता नहीं कितना उसको स्ट्रांग हम सिस्टम बना दें कि दोबारा ये गलती नहीं हो. लेकिन वो गलती नहीं हो उसके लिए जो एक प्रिवेंटिव विजिलेंस का एक मैट्रिक्स और एक जो सिस्टम होना चाहिए, उस पे हम अगर नहीं काम करते हैं तो अगर जिसका जितना स्ट्रांग प्रिवेंटिव विजिलेंस होगा उसको उतने ही कम रिएक्टिव विजिलेंस की मेजर्स की जरूरत पड़ेगी इंस्टीट्यूशन के लेवल पे जब हम बात करते हैं. नेक्स्ट, अब इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस पे ही मैं ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आप लोग इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस के ही पार्ट हैं. वी आर ऑल. तो इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस में regulation of conduct and behavior for maintaining credibility and integrity of the institution. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस का वो यही है कि हम कंडक्ट को रेगुलेट करें, बिहेवियर को रेगुलेट करें, ताकि जो एक इंस्टीट्यूशन की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है और इंटीग्रिटी है वो बरकरार है. तो उसको करने के लिए कंडक्ट और बिहेवियर का ही हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे आपने वहां पे जो है एक आई कार्ड का सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया. इसी तरह क्लासरूम्स में आप इंश्योर करें कि कहीं कोई वहां पे कॉलेज की प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो थेफ्ट नहीं हो, ऐसे कुछ नहीं हो. यू कैन नॉट डिटेल पीपल एट एवरी पॉइंट, सो यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ सीसीटीवी सिस्टम, सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, जिससे आपको लगता है कि आप यू कैन सी एट वन प्लेस कि यहाँ पे जो भी, और अगर कुछ होता भी है तो यू आर एबल टू नो कि ऑफ कोर्स में भी यहाँ से किसी की एंट्री हुई है, यहाँ से किसी की एंट्री हुई है. आई मीन दिल्ली यू हैव लॉट ऑफ पब्लिक स्पेस इज फुल ऑफ मेनी सीसीटीवी कैमरास इंस्टीट्यूशंस को. तो और नॉर्मल केसेस में देयर आर ओनली 3 ways थ्रू यू आर गोइंग टू रेगुलेट या कंडक्ट किसी का बिहेवियर और कंडक्ट होता है. वो एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रेगुलेट आवर बिहेवियर आवरसेल्व्स ओनली. हमको हेलमेट पहन के सड़क पे मोटरसाइकिल ड्राइव करना चाहिए. दिस इज पार्ट ऑफ अ सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ आप रेगुलेट करें. मैक्सिमम पीपल डू दिस. We should walk on the left side of the road. It's a part of a self-regulation that I'm regulating. Nobody is telling me. But when the self-regulation का level अगर बहुत कमजोर होता है, when the compliance level is not very high, then institutional regulations का रोल आता है. फिर इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना पड़ता है. अगर एक आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है बड़े ही फेमस चीज से, what is that? It's an institutional regulation of a, you know, it's an institutional regulation. तो जब आप अपना बिहेवियर खुद नहीं रेगुलेट करेंगे
तो एक उसका लेवल जो उस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा कि आप इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन होगा. You are supposed to be in the office or in the class by 10 o'clock. This is the self-regulation. Everybody should come at 10 o'clock. Now, if you are not coming at 10 o'clock, you come at 11 or 12 o'clock. So there is a regulation, institutional regulation. ये हुआ कि आप वहाँ biometric लगा दो, biometric attendance लगाइए आप, so that you are able to know who comes at 10 o'clock, who comes at 11 o'clock. So अगर हर आदमी का level of compliance अगर हो जाए अपने behavior को regulate करने के लिए, तो institutional regulations का रोल कम होगा. लेकिन चूंकि सेल्फ रेगुलेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस का इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस भी अगर जब फेल हो जाता है, देन कम्स रेगुलेशन बाय द स्टेट. तो एक्चुअली जो लॉ का कॉन्सेप्ट है वो इसी ब्रॉड फ्रेमवर्क में इमर्ज किया है. व्हेन बिहेवियर्स आर कंडक्ट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द इंडिविजुअल, द सोसाइटी फेल्स टू रेगुलेट दैट. फॉर एग्जांपल सती, व्हाट इज सती? I mean, it is individual level पे पहले इसको रेगुलेट करना चाहिए, नहीं हुआ. इसको रेगुलेट करने के लिए सोसाइटीज भी इसको अगर प्रमोट करने लगी, सोसाइटल रेगुलेशन भी जब नहीं हुआ, then you have to make a law. So there are many such human behaviors which could have been normally regulated by, or the conduct could have been regulated by the individual himself. And since it was not done, so the interventions of the society, if society also failed, then the interventions of the state came. और state का intervention के बाद जब आया, then you had codified laws, regulations. Those codified laws, rules and regulations had, I mean, commensurate punitive provisions also. Because जब law बनता है तो फिर law is not going to take into account your consensus dimensions कि आपने किया, आपने violate किया. अगर हेलमेट आपको खुद पहनना चाहिए था, आप नहीं पहन रहे हैं, तो आपको हेलमेट पहनाने के लिए फाइन करना पड़ता है. It's a very difficult, it's a very, I mean, I would say odd situation that हेलमेट पहन के आपका हेड सुरक्षित रहेगा, आप ही उससे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपके हेड को सुरक्षित करने के लिए एक लॉ के थ्रू आपको पहनाना पड़ता है, क्योंकि आप उस चीज को, आपका कंप्लायंस लेवल, योर लेवल ऑफ कंप्लायंस, self regulation of that behavior is very poor. You are not able to do that. So a law has to come in place. I mean, we all have gone through this pandemic. Mask पहनना ये तो voluntary behavior है ना. Everybody is supposed to wear mask. अब मास्क जो लोग नहीं पहने, कलेक्टिव इलाके में कहीं जा रहे हैं, तो मास्क के लिए फाइन लगाना पड़ा फिर. तो जब आपका इंडिविजुअल रेगुलेशन उस बिहेवियर को, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने में जब फेल हो गया, तो रेगुलेटरी बॉडीज का रोल है. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली यू हैव डिफरेंट रूल्स, लॉज, नए जो हैं उसी हिसाब से आए हुए हैं. किसी जमाने में जो दहेज से रिलेटेड चीजें होती थी, आज से 20-25 साल पहले देयर वाज नो एक्ट, देयर वाज नो सेक्शन कॉल्ड 498B, देयर वाज नो सेक्शन, डॉरी डेथ नहीं होता था. लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होने लगी और इंडिविजुअल रेगुलेशन, सोसाइटल रेगुलेशन भी फेल हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए देन यू हैव टू हैव लॉज. सो दीज आर 3 ways normally through which we are able to make, in fact, ensure institutional vigilance also. Next. sometimes सुपरवाइज करने के लिए भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. वो तो रेगुलेशंस के, हाँ, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ. अब जैसे एक ये बड़ा फेमस कोट है चाणक्य का, पढ़िए, कोई आदमी पढ़िए इसको. क्या है? मतलब this is, I like this. This is such a profound statement given she ages before. जिस समय चाणक्य's एडमिनिस्ट्रेशन, उसने मतलब फिश पानी में है, वो कितना, मतलब आप देखिए कि ये कितना एप्ट है ये चीज, जिस चीज को एक्सप्लेन कर. पता नहीं मैंने नहीं, लेकिन ये, हाँ, वो चूंकि बहुत लिंक है ना ये, तो ये दिस शोज द विजडम. किस समय किसी आदमी ने हमारे यहाँ, मतलब उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में, देयर वाज अ पर्सन हु सेड कि
अगर फिश पानी कोई पी रही है तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि जो आदमी गवर्नमेंट का ही काम कर रहा है वो कितने गवर्नमेंट के मनी को मिसअप्रोप्रिएट करता है. एंड वी ऑल एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट वी ऑल नो दैट हाउ आई मीन मनी इज साइफन्ड, क्यों इस तरह के करप्शन, सारा वो एक अलग बहुत बड़ा चीज. लेकिन ये जब हम इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस और बाकी सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है विच वी शुड रिमेंबर. नेक्स्ट. अच्छा, अब इंटरनल विजिलेंस सिस्टम, फिर मैं उसी पे आ रहा हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल विजिलेंस सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत स्ट्रांग होगा, वहां एक्सटर्नल विजिलेंस का बहुत कम होगा. इफ योर इंटरनल विजिलेंस सिस्टम, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉलेज के कुछ रूल्स रेगुलेशंस, उस रूल्स रेगुलेशंस को ऑन द ग्राउंड इन्फोर्स करने के लिए इफ यू हैव सम काइंड ऑफ एन इंटरनल विजिलेंस सिस्टम विच यू सेट सुपरवाइजरी, कि भाई टाइम पे क्लास शुरू हुआ कि नहीं, टाइम पे लोग आए कि नहीं, सारे लोग गए कि नहीं, बाकी एक जो उस सिस्टम के सारे पार्ट हैं उसमें एक सिस्टमिक प्रोटोकॉल का जो नॉर्म्स है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको फॉलो करने के लिए दो ही तरीका आपने छोड़ दिया ऐसे, भाई ठीक है जिसको मन जब आए जाए, जिसको जब कोई क्लास में पढ़ाए नहीं पढ़ाए. तो हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल टीम है वो भेजेगी एक कॉलेज में कि भाई जाके देखो यार, यहाँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ तो क्लास होता ही नहीं, यहाँ तो जो दफ्तर में लोग आते हैं वो 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं. बट अगर उस कॉलेज के ही सिस्टम में ऐसा कोई उनका अपना इंटरनल विजिलेंस सिस्टम है विच इज एबल टू टेक केयर ऑफ, उनके अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि उसमें से किसी आदमी की एक दिन ड्यूटी लगी हुई है वही सबको चेक करेगा. आपने ऐसे गैजेट्स टेक्नोलॉजी का आपने इंटरफेस वहां कर दिया जिसके थ्रू आप, सो जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल विजिलेंस सिस्टम चेक्स बैलेंसेस बहुत स्ट्रांग होता है उसकी इफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है. वो उसको उसके ऊपर फिर एक्सटर्नल विजिलेंस एजेंसी को भी सोचना पड़ता है कि नहीं भाई इनके यहाँ तो है, बिकॉज आपके यहाँ से नेगेटिविटी जनरेट नहीं हो रही, आपके यहाँ से ऐसे इश्यूज नहीं जा रहे हैं कि एक्सटर्नल विजिलेंस सिस्टम को इंटरवीन करना पड़े. लेकिन सिंस आवर इंटरनल विजिलेंस सिस्टम इज आल्सो नॉट दैट स्ट्रांग, सो यू हैव एक्सटर्नल, क्यों सीबीसी को किसी चीज को इंक्वायर करना पड़ता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इंक्वायर करना पड़ता है, कोई टेंडर हो गया, कोई चीज हो गया, तब उस पर अगर किसी लेवल पे विजिलेंस नहीं रखा गया पूरे प्रोसीजर में, तो देन यू हैव सीबीसी, सीबीआई, ईडी, एंटी करप्शन ब्रांच, कैग, ये सारी ओवरसाइट बॉडी है, बट दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एक्सटर्नल विजिलेंस सिस्टम. वो एक्सटर्नली इंश्योर करती हैं कि सीबीसी का एक मैनुअल जो दिया हुआ है वो इन्फोर्स हो, सर्कुलेट किया गया है कि आपको टेंडरिंग करेंगे तो आप यू आर सपोज टू डू दिस, अगर किसी को नॉमिनेशन पे कोई चीज अवार्ड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, what kind of financial rules and general rules you are supposed to do if you are indulging into bulk procurement, bulk purchase of that particular thing. क्या इन सब चीजों का ध्यान रखा गया, नहीं रखा गया, नहीं रखा जाता है. कैग का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैग, सुपर बॉडी है, ये सारे जगह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, सो फाइनेंशियल विजिलेंस की एक बॉडी है जो इंश्योर करती है कि हर जगह एक जो मैट्रिक्स और प्रोटोकॉल दिया गया है चीजों को अचीव करने का, उसको मतलब जो आपका एंड है उसके लिए एक जो मीन्स का प्रोटोकॉल बना हुआ है, लेजिटिमेट प्रोटोकॉल, आप उसको कहां तक फॉलो करते हैं, उसी लिए वो. तो external vigilance system comes as and when the internal vigilance system is weak, it does not work properly, where there is no respect for rules, where there are an internal vigilance system में nobody stops the organization to adopt. इसीलिए हर जगह vigilance एक unit भी होता है, उसका reason यही है. The whole idea behind creating an institution like vigilance wing is only to ensure that the internal vigilance system is almost in place. They are able to have checks, balances, they are able to control, they are able to have surprise checks, they are able to ensure that things happen as per
particular protocol in an institution. साइकोलॉजिकल डर भी होता है, साथ ये है। हाँ, इंटरनल विजिलेंस सिस्टम का भी एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस होता है और एक्सटर्नल का तो होता ही है, लेकिन जिस इंटरनल विजिलेंस सिस्टम जितना रोबस्ट होता है वो उतना ही, दे डोंट केयर फॉर कि एक्सटर्नल विजिलेंस सिस्टम से हमको कोई होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आपने इंटरनल विजिलेंस सिस्टम को आपने नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी फर्क पड़ता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशनल, स्टूडेंट आ रहे हैं, करप्शन का पैमाना इतना या इतना कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली, हम इसीलिए मैंने शब्द यूज किया इंस्टीट्यूशन। एक हमारी जो इंस्टीट्यूशन में सब आ जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बाकी अलग जो भी जितनी बॉडीज हैं वो सब उसी में आएंगे। नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी, मैं अभी तक आपसे विजिलेंस पे मैंने अभी बात की, विजिलेंस का ही एक आपको ब्रॉड ओवरव्यू दिया मैंने, एक फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन इश्यूज, यही बेसिक चीज है सिक्योरिटी, नथिंग एल्स। आप चल रहे हैं, आपने देखा कि सामने गड्ढा है, तो आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप गड्ढे में गिरेंगे या गड्ढे से साइड से जाएंगे। सो हाउ डू यू लुक एट दैट होल विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, उस गड्ढे के सामने, वही आपको, तो इट इज हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम किस चीज पे। अब मैं आई कम कि पर्सनल सिक्योरिटी के लेवल पे क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी भी बहुत ब्रॉड है, सिक्योरिटी इज अ वेरी ब्रॉड थिंग, इसीलिए मैंने कहा कि एक इंटरनल सिक्योरिटी, इसके लिए ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे यहाँ। यू हैव अ बॉर्डर सर्वेलेंस, सारी चीजें हैं, देयर इज ऑलरेडी अ सिस्टम इन प्लेस। एक्सटर्नल उसके लिए भी है, उसका भी एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। प्रॉब्लम होती है हम जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लेवल पे आते हैं। इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लेवल पे सबसे ज्यादा इंडिफरेंस होता है आदमी। We are very much indifferent to our own security issues जो concerns करता है। तो on the street, surroundings और inside house, यही तीन चीज है इंडिविजुअल सिक्योरिटी से। Either you are on the road, you are inside house, or you are just moving around in the complex. But इन तीनों लेवल पे हमारा क्या एटीट्यूड है, वही हमारे ओवरऑल सिक्योरिटी को जो है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, so security is also a very, it's a multi-dimensional and multi-stakeholder concept. किसी भी चीज को सिक्योर बनाने में इंडिविजुअल अपने घर के अंदर की चीजों को सिक्योरिटी में उसका अपना रोल है। जब आप रोड पे आते हैं, रोड पे लाइट होना चाहिए, किसका रोल है? सिविक बॉडीज का। They have to ensure that there is a street light. If you are inside community and there is no street lighting, then the community comes together and they are able to install certain lights कि भाई ये well lit area हो, ताकि इससे हमारे security नहीं affect हो। So person, premises owner who are important stakeholder in the overall security. Premises में अगर आप रह रहे हैं, कहीं घर में रह रहे हैं, तो जो ओनर है उसकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको सिक्योर बनाने के लिए। हर चीज की बजटिंग करता आदमी। ये लास्ट आपके मैंने जो लिखा है, वी डू बजटिंग फॉर एवरीथिंग। बच्चे का फीस देना है हमें, LIC का प्रीमियम हो गया है, उसको भी हमको ड्यू देना है, ये टेलीफोन का बिल देना है, चाहे आप उसको आजकल फोन पे दीजिए, जैसे भी दीजिए, यू हैव अ शेड्यूल फॉर दिस। लेकिन सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। लेकिन आपने 6 लाख की गाड़ी खरीदी हुई है, वो गाड़ी भी सेफ रहे, उसमें 5,000 रुपये का हम अलार्म लगा दें, इसके बारे में हम नहीं सोचते। हम 50 लाख रुपए का घर खरीदते हैं और 50 लाख रुपए के घर में एक मैजिक आई या एक CCTV या एक डोर चेन, एक छोटी सी चीज जो है ये लगाने के लिए वी डोंट थिंक, बिकॉज वी नॉर्मली रेलीगेट responsibility of our own very important security things to others. ये तो पुलिस करेगी जी, ये दूसरे काम है जी, एंड
ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम ब्लेम तो किसी चीज का लेंगे नहीं अपने आप पे, तो हमेशा उसको जी अरे जी गाड़ी मैंने लगा दिया रोड, भाई वर्ल्ड के किसी जगह पे एक एक गाड़ी के आगे एक एक सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस थोड़ी रहती है. So that is where the concept of community policing comes, that why, what is the role of the community which comes. So हम अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारी चीजें हैं, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं, उसके लिए हमारे पास कोई बजटिंग नहीं है. वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ बजटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बजट फॉर दैट ऑल्सो, or at least we critically identify. Budget means you may not be able to do in this month, that month, but you have identified that this is something which also I have to get. घर के आगे मुझे ये लगा देना, ही तो छोटा सा चीज होता है. मैजिक आई देखने के पहले आदमी जो है, किसी को आप दरवाजा खोलने के पहले you are able to peep through that and somebody else is able to do that, rather than एकाएक ही आप गेट खोलते हैं. उसी को चेन उसके साथ एक छोटा सा. These are very small things, but normally they don't attract our attention. We are not very concerned about it. Next. So अब सिक्योरिटी को मैंने कोशिश किया कि क्या क्या एक सिक्योरिटी के आदमियों के लिए क्या चीज एसेंशियल है जो आदमी को सोचना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट इज दैट सिक्योरिटी के लिए तो सिंसियर होना पड़ेगा आदमी को, दैट यू आर सिंसियर. यू जो भी इश्यूज हैं आपके पास, उसको आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली घर में ये चीज लगना चाहिए, गाड़ी में ये चीज लगना चाहिए, या ये जो भी इश्यूज आपसे रिलेटेड हो, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी अगर आपके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, देन यू हैव टू बी सिंसियर कि अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिवेंटिव विजिलेंस, एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, दैट दिस इज इंपॉर्टेंट. So this can happen only if you are sincere about it. If you are not sincere, if you are casual, you will not be able to do that. If you are sincere, then you will be eager. Next, E जो security का E है, वो eager है आप कि अच्छा हाँ इसको मुझे करना है. मतलब at least thought process के level पे you have developed the idea कि okay yes I must do this. And of course security तभी होगा जब if you are careful. That's also very important characteristics of a person who is talking about security as a concept. Urgency. कितना अर्जेंट है जिस चीज को आपने आइडेंटिफाई किया. कॉलेज की सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आदमी कॉलेज में इंटर करे उसकी आइडेंटिटी मतलब जो एस्टैब्लिश हो, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया. यू आर सिंसियर, यू आर ईगर, यू हैव आइडेंटिफाइड. नाउ यू थिंक दैट कि अब इसको हमको अचीव करना है. आप उसको अर्जेंसी भी इसकी होनी चाहिए कि हाँ हमें इसके लिए एक कार्ड बनाना चाहिए, इसके लिए एक आई कार्ड देना चाहिए सबको. तो आपने वो कितनी जल्दी हम उसको दे सकते हैं, उसके लिए एफर्ट्स क्या करना चाहिए हमको. रिस्पॉन्सिबल. इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल यू कांट बी सिक्योर एनीवेयर. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद योर रोल्स. वी ऑल परफॉर्म वेरियस रोल्स. हाँ, तो एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं. इंफॉर्मेटिव एंड इनोवेटिव. आप सोचते भी हैं उसके बारे में, आपको पता भी है कि लेटेस्ट सिक्योरिटी हजार्ड्स के क्या क्या, उसको खत्म करने के लिए क्या क्या नई चीज उपलब्ध हैं. इनोवेट भी करते हैं आप सोचते हैं कि हाँ इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है जब इश्यू आया. तो tactful. There are situations when you have to be very tactfully handle if there are issues related to the security. You can't abruptly react also at times. That may pose additional threat to yourself. So you have to slightly see how is the threat, how tactfully I should handle this. And yearn for improvement means you always think that I have to improve. There is a change. There is always a scope for change. कुछ न कुछ तो उसकी लालसा जरूर होनी चाहिए. यहाँ अगर कुछ हो सकता है और बेहतर कैसे हो सकता है, और चीजें कैसे अच्छी हो सकती हैं, और कैसे इंप्रूव हो सकता है. हम गेट पे ताला लगा दिए, एक इंप्रूवमेंट ये हो सकता है बाउंड्री वॉल को हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया. तो जो एक इंप्रूवमेंट की आपकी टेंडेंसी या एक थिंकिंग के लेवल पे होना चाहिए, दैट यू हैव नॉट कम टू अ पॉइंट दैट व्हाट आई हैव डन इज फाइनल नाउ. बिकॉज हर चीजें बहुत डायनेमिकली चेंज करती हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स तो बहुत ही चेंज करते हैं. आज के पहले कंप्यूटर पे
मतलब कभी आपके पर्स से पैसा निकलता था आप जब जाते थे, अब आपका पर्स तो पता ही नहीं कहाँ है, आपका पर्स ऐसे ही जो है वो साइबर क्रिमिनल जामताड़ा वाला ऐसे ही आपका 14,000 15,000 लाख 2 लाख निकाल लेता है। वो तो पर्स तो उसको तो एक्सेस भी देयर इज नो, इट्स एन एनोनिमस क्राइम, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। Your one mistake has, your one in fact lapse, your one, you are not careful, you had it. आपसे पूछा किसी ने फोन करके कि आपका आपके कार्ड पे जो आपका नंबर अपडेट नहीं हुआ है आपका, वो उसके बाद आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब आपको पता नहीं आपको सुविधा नहीं मिलेगी तो पैनिक हो गया, तो अब तुरंत आपका रिएक्शन होगा, अच्छा क्यों सुविधा नहीं मिलेगी, क्या होना बताओ भाई। Without establishing the identity of the caller, whether he is supposed to know this, but he has your background information, he has your information। हाँ, तो आप इस नंबर को डायल कर दीजिए, इस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, तो सिक्योरिटी तो गया, ओटीपी के साथ आपका बैंक का कनेक्टिविटी है एंड योर मनी गोस। सो दीज आर ऑल थिंग्स वेयर अब वो डायनेमिज्म यही है। साइबर क्राइम आज के डेट में it's a very major concern, it's a major concern। साइबर वॉरफेयर की बात होती है। वी डोंट टॉक अबाउट कि अब हमारा मतलब आप पहले ये होता था नॉर्मली जो ट्रेडिशनल थीव्स होते थे वो जो है आप चलते हुए अभी भी डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में या बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी का पर्स चला गया, कुछ हो गया। अब तो दे आर सो स्मार्ट नाउ दैट दे डोंट हैव टू अडॉप्ट दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। हाँ, next। Okay, now I am coming to that. This is I wrote this book, man. Normally, I mean, in all my more than 3 decades of music everywhere in Delhi or wherever I've been, एक मेरा एजेंडा ये हमेशा रहता था कि I must share something with the community. I owe something to community also. So market associations, हर जगह I used to interact with them. I interact with them, I'll share। कोई क्राइम होता था तो मैं वहां दूसरा क्राइम उस तरह का नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए I would interact with people। This I did, this I promoted also my own offices। फिर एक बार I realized that there is a need to document these things also, ताकि एटलीस्ट वाइडर इसका जो है मतलब लोगों तक पहुंचे ये। So then I first wrote this book in English, it came out। अब इसका मैं आपको, this has touched, I'll just give you the details of the chapters that will give you an impression that what all things I have tried to cover in this। Next। So it starts, ये सारे chapters हैं, tips for preventive terrorist attacks। Now मुझे पता नहीं आप दिल्ली के लोग ये जानते होंगे कि राडू का एक किडनैपिंग हुआ था, एक रोमानियन डिप्लोमेट वाज abducted in this। राडू एक रोमानियन डिप्लोमेट, बहुत पहले 90s की मैं बात कर रहा हूँ। He was abducted by a terror group। और बाद में जब उसमें सब कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, सब पता चला कि they had rented a house and it was a government house which was given on rent to these people जो एक कपल के रूप में आके वहां पे रहते थे and they had a role playing into that। So ये tips for preventing terrorist attacks में I have discussed कि market areas में कैसे क्या क्या adopt कर सकता है market association, इंडिविजुअल लेवल पे क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इस तरह की नहीं हो कोई भी एक्टिविटी, हम जब चल रहे हैं, हम घर पे रहते हैं, आसपास देखते हैं, उस पे क्या क्या चीज हो सकता है। टुवर्ड सेफ ट्रेन ट्रैवल, आप लोगों ने कहीं बात देखा होगा कि ट्रेन में जाते हैं लोग, आपके साथ बैठते हुए फेलो पैसेंजर्स बिकम वेरी फ्रेंडली विद यू और इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको वो मतलब मिठाई और सब चीज आपको खिलाने लगते हैं आउट ऑफ आवर। हाँ, तो ये वो केसेस बढ़ा, इसीलिए व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन
what kind of precautions you should take? वो जो डायनेमिज्म की जो बात मैं कह रहा हूं कि why the other person who's sitting next to you, who's offering something, becomes a suspect all of a sudden. He may be a very good person, but in a similar kind of circumstances, a person who acted like this has created problems for you. So you have to be conscious of that. Then tourists, what need to watch out? We all are international tourists या domestic tourists होते हैं, उनको भी कोई बहुत जगह आपने देखा होगा मैनुअल्स होता है टूरिस्ट का कि यहाँ मत जाइए, ये चीज करिए, ये जगह है, तो क्या क्या आपको चीज, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट ऑल्सो लैंड अप इन ट्रबल, किसी से टिकट कटाना हुआ तो वो किसी दूसरे आदमी से कर ले। सो ये सब चीजें जो बहुत जनरल हैं हमारे लाइफ में डे टू डे होता है। IRCT से ही हमको टिकट कटाना चाहिए, हम नहीं कटाते हैं, किसी दूसरे के थ्रू कटाते हैं, पता चला कि वो बोगस हो जाता है वो। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी शुड टेक? ATM से कैश निकालते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी शुड टेक? वेरी फ्यू वास नो, जो आप हैं, आपके पीछे कोई आदमी खड़ा रहता है, वो भी पैसा निकालने के लिए खड़ा है, यू रियली डू नॉट नो वेदर ही इज देयर टू सी वेदर वो अपना पैसा निकालने के लिए आ रहा है या वो ये देखने के लिए आप पासवर्ड क्या डालते हैं। बट वी आर नॉट वेरी केयरफुल व्हेन वी टेक आउट मनी, पीछे उसके सामने ही देख के हम जो है वो अपना पासवर्ड उसमें डालते हैं, बाद में थोड़ी देर बाद somebody, वही आदमी जो है उसको ये करता है। फिर टेम्पलेट्स टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट, ये ऑफ कोर्स हमारे जो कंप्यूटर से साइबर से रिलेटेड है। हाउ टू चेक ऑटोमोबाइल थेफ्ट, गाड़ियां चोरी नहीं हो उसके लिए क्या क्या हमें एफर्ट्स करना चाहिए। सेफ्टी टिप्स फॉर एल्डरली, सीनियर सिटीजन, वी ऑल गोइंग टू बी सीनियर सिटीजन, क्या हमें सीनियर सिटीजन्स के रूप में हमें होना चाहिए। देयर इज अ एक्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स इन विच मेंटेनेंस एक्ट में देयर आर clear directions that if your dependents, if your children, they fail to enforce certain things, you have a right to go for it. These are urban hazards, urban areas में होता है, nuclear families जहाँ बहुत ज्यादा है, जहाँ की पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम रिलेटेड टू सर्वेंट्स या दूसरे होते हैं। नेक्स्ट, हाँ बोलिए, हाँ पीछे पीछे हाँ एक बार क्या हुआ कि मैंने सिम लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी जो रिटेलर होते हैं और मैंने सबने सिम पर लिख भी दिया, मैंने ऐसे लाइन लिखी और परचेज ऑफ सिम एयरटेल सिम या आइडिया सिम, ये 8 से 9 साल पुरानी बात। और उसके बाद मैंने 3 साल बाद नोटिस किया कि मेरी उसी आइडेंटिटी पे 4 और सिम रन कर रहा है। इस तरीके की आइडेंटिटी हो रही है, इसको हम कैसे प्रिवेंट? नहीं, इसके लिए बड़ा जो टेलीकॉम TRAI के काफी स्ट्रॉन्ग अब रेगुलेशंस हैं, ये बहुत आए। उसके बाद अभी तो बहुत ज्यादा उन्होंने कैफ में किसी आदमी को देने का, अब तो बिना आपके फिंगरप्रिंट और इस सब चीज के वो देते भी नहीं है। 4 साल पहले तो स्थिति ही दूसरी थी, लेकिन अब नहीं, तो उस पे अब देखिए, जैसे आपको पता चले तो एक तो इमीडिएटली यू शुड रिपोर्ट दिस, ठीक है, दैट यू शुड डेफिनेटली डू। फिर अब इंटेंट एक है जो ब्रॉडर चीज है, जिस आदमी के पास गया अगर उसकी, लेकिन वो जब इन्वेस्टिगेशन या ऐसी कोई चीज होता है, ट्रेस होता है, तो आदमी को पता चल जाता है। मतलब कि अगर किसी ने किसी के दूसरे सिम कार्ड किसी दूसरा का यूज करके लिया, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस होता है। कई जगह ऐसे लोगों को, मतलब जो है कई बार टेनेंट को ही जो है, टेनेंट जो है ओनर का ही एड्रेस लेके करता है, इंडल्जेस इनटू समथिंग एल्स, लैंडलॉर्ड गेट्स in fact prosecuted because identity documents तो उन्हीं का था ना, उन्हीं के बेसिस पे। तो ये तो बेसिक डेफिनेटली आपको प्रिकॉशंस रखना चाहिए, और अगर ऐसा होता है, पता चलता है आपको किसी का, दैट आल्सो यू शुड डेफिनेटली रिपोर्ट टू योर। बट अब ये बहुत ज्यादा इट हैज बिकम वेरी, मतलब अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गया। नहीं तो ये बहुत होता था पहले कि एक आदमी 5-5, 6-6, 7-7 सिम या ऐसे ही ले लिया, बिना इसी किसी डॉक्यूमेंट्स के भी दे दिया। बट हम लोगों के एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे आई, तो जब चीजें ऐसी आइडेंटिफाई हुई, उनको हाईलाइट किया गया टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडीज को, और उसी के बेसिस पे बहुत चीजें जो है वो इमर्ज की हुई है।
सिम पे यूनिक नंबर नहीं, उसका जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका IMEI नंबर होता है, दैट इज यूनिक। वो तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो अलग। सर इनके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं करना चाहता हूँ। जब भी ये अपनी कहीं आईडी देते हैं और जिस पर्पज के लिए आप दे रहे हैं वो उस पर स्पेसिफिक मेंशन कर दीजिए, उसको क्रॉस कर दीजिए, आई एम गिविंग दिस आइडेंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ अलग-अलग। नहीं, उसी को इनका कहना है कि कई जगह उसके यूज कर लिया। मतलब जहां तक हो ये जरूर आप पर्पस जरूर स्पेसिफाई कर दो आप, इट इज ओनली मेंट फॉर दिस पर्पस। इसलिए बता रहे हैं। समटाइम ये भी होता है कि अगर आपके एरिया में पर्टिकुलर दुकान है और एक जगह खुल गई है, उनका आज है कल नहीं है, अगर एक परमानेंट नहीं रहता है उसकी थोड़ा वहाँ है, अगर आप वहाँ से कोई सिम कार्ड ले रहे हैं, आप 2 दिन 4 दिन बाद रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ना, उनको भी डायरेक्शंस है कि ये सारा चीज आप मेंटेन करिए, डायरेक्शंस उनको भी दिया हुआ है। सम ऑफ देम दे फॉलो, सब अब रूल्स तो है, हर आदमी हेलमेट पहने रोड पे चल रहे हैं, नहीं पहनते हैं प्रोसिक्यूट होते हैं, तो जो उसमें नहीं करता है ही गेट्स प्रोसिक्यूटेड आल्सो। ये इसी तरह सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स, हाउ टू चेक साइबर क्राइम्स, टिप्स टू अवॉइड फिशिंग, वार्निंग साइंस ऑफ स्पैम मेल, साइबर सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन, व्हाट क्रेडिट कार्ड यूजर्स नीड टू अवॉइड, what women should take, महिलाओं को क्या क्या precautions लेना चाहिए। So that 28 such, it has 28 chapters. Latest edition, I updated some other things also. I think it's on Kindle now, Kindle also online. वो 2019, 18 या 19. Okay, precautions that children need to take. इसमें I have added not many things जो कि अभी हमारे चिल्ड्रन के साथ ये जो गेम्स वगैरह शुरू हुए थे नए नए, जैसे PUBG और बाकी सारे, I have included that. Preventing trafficking of children. ये ट्रैफिकिंग एक बड़ा मतलब जॉब के चक्कर में कैसे लोग जो हैं they land up in such nets, जहाँ से कि आपको नौकरी दिला देंगे, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, and you are trafficked and you indulge into totally different domain there. Handling false job premises, what to watch out for when driving a car. You know, कार ड्राइव करते समय भी you need to take some kind of a precautions. आजकल जैसे many places somebody knocks, आपने देखा होगा, वो नॉक करते ही पैसा गिर गया, आप पैसा उठाइए, आपका दूसरा बड़ा पैसा जो है it goes, you know. So precautions for victims of crime. एक तो था कि सब कुछ आप precautions ले लीजिए ताकि आप victim नहीं हो, लेकिन अगर आप victim of crime हो गए हैं तो क्या precautions लेना चाहिए, that is also very important. फिर आपके घर में जैसे नॉर्मली होता क्या कि बर्गलरी हो गई, अलमारी टूट जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो हम पैनिक में हर चीज को टच कर देते हैं, तो के लिए सीन ऑफ क्राइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी जगह अगर विक्टिम हुआ है अगर क्राइम का, तो उनको एज अ विक्टिम क्या क्या चीज प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यही लास्ट चैप्टर में मैंने हाईलाइट किया। पहले तो है कि यू डू नॉट बिकम अ विक्टिम, सो फॉलो दिस, बट इफ यू हैव फाइनली बिकम अ विक्टिम, follow these also. Now ये एक security से ही related, this is a very famous saying, इसको भी आप देखिए, जो हम कहते हैं ना कि ये मार्टिन और मिलर जो है, ये जर्मन, इसमें एंटी नाजी बहुत ज्यादा, मतलब तो वहां जब नाजीज के खिलाफ बहुत ज्यादा, जब there was no mobilization, people, हर आदमी सोचता था कि हम ही जो है सिक्योर है। बहुत अच्छा इसने ये बात कहा, हम उसको एक डे टू डे कैसे लाइफ में हमारा एटीट्यूड, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन एटीट्यूड। फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वाज नॉट अ सोशलिस्ट। मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मेरा क्या मतलब है, ये तो सोशलिस्ट के लिए आए हुए, ठीक है। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, मेरा मतलब नहीं है, मैं ट्रेड यूनियन से कोई मतलब आता नहीं है। टायरेंट के लिए या कोई क्रिमिनल्स, लेट अस टॉक अबाउट दैट, मैं उसी से रिलेट करूंगा इसको। देन दे केम फॉर द ज्यूज एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वाज नॉट ए ज्यू, उसको भी हमने नहीं किया। देन दे केम फॉर मी एंड फाइनली देयर वाज नो वन टू स्पीक फॉर मी। आई थिंक हम एक लोकेलिटी में रहते हैं
हमारे पड़ोसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई अरे मेरे घर पे थोड़ी हुआ है, ये तो इनके यहाँ हुआ, मेरे क्या मतलब। ये तो दिल्ली जैसे जगह में अर्बन एनोनिमिटी इतनी ज्यादा होती है कि पीपुल डू नॉट नो देयर नेबर्स, दे डोंट इंटरैक्ट। सो अगर हम एक जो अपने इंडिविजुअल की परिधि में ही अगर हम चीजों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि इट इज नॉट अफेक्टिंग मी, so you do not raise concerns about it, you do not become vigilant, you don't take measures about security, you don't take measures about other things which is required. So finally, if you become a victim, there is no one who can actually say that यार आपको पहले भी कहा था कि आपको कर लेना चाहिए था, ये करना, ये इश्यूज आती है ना आपके। तो ये हमारे अर्बन एरियाज में जो एक सिक्योरिटी का हमारा डे टू डे लाइफ में जो रिफ्लेक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, and I will end by this very good saying by Bible: the wide see danger ahead and avoid it, but fools keep going and get into trouble. ये वही मतलब, as long as I am not the victim, या मैंने सामने देखा भी कोई इशू है तो आप इग्नोर्ड, आप एक इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, आपने देखा कि कोई आदमी आने के लिए एंट्री एक फ्रंट से होता है, कोई कॉर्नर से ही जो है आने की एंट्री कर रहा है, आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया, देन कॉर्नर आल्सो बिकम्स अ एंट्री पॉइंट. So that is where you have not taken. So I think I will end by this only. Thank you very much. Thank you so much. Time for some questions from the candidates. Yes, yes. Yeah, from participants. So we can now have a question answer session. So here we can do this, yeah, from here. Well, can I mean, of course, there will be things to say in conclusion, but I think, sir, it's wonderful to see that you were quoting from Bible, you were quoting from Arthashastra, you were quoting from the anti-Nazi theologian Martin Niemöller. So very rich, I should say. Of course, one can expect this from a sociologist anytime. So now, any questions for sir? ये मिल जाएगी कहीं भी, नियोगी बुक्स ने एक्चुअली पब्लिश किया था। हाँ, अगर किंडल वर्जन है तो फिर आप अमेज़न पे भी होगा, अमेज़न आल्सो, एंड it's I'm not here to, I hate actually, I'm not a very good in fact promoter. People say that it's a very cheap book, it's just it's below 100, it's not more than that. नहीं, मैं आपको उसका एक ही एग्जांपल दूंगा। गोवा में मेरे एक दोस्त कलीगी थे, वो वहां से जब गए तो उनके घर की एक लाइट जलती हुई थी, while he was away also लाइट जलती हुई थी। तो आई थॉट कि he must be here। जब वो लौट के आया तो मैंने कहा कि यार तुम मतलब कहाँ थे? तो मैं तो बाहर गया हुआ था, दिल्ली गया हुआ था। मैं बोला कि तुम्हारा लाइट तो घर का जला हुआ था। बोला सर वो आपका किताब में पढ़ के गया था ना कि जब जाओ भी तो आप कम से कम एक लाइट जला के जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई क्रिमिनल्स हमेशा क्राइम करने के पहले रेकी करता है। उसका बैड लक है कि वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो हमेशा ऐसा उसके स्कीम में दो ही चीज रहती है, सेफ एंट्री एंड सेफ एग्जिट। उसको इंश्योर करने के लिए वो एब्रप्टली कोई मतलब काम नहीं करेगा। वो तो पकड़ा गया तो उसकी बदकिस्मती है। वो तो कोशिश ऐसे ही करता है कि मैं ऐसा काम करूं कि पकड़ा नहीं जाऊं। तो पकड़ा नहीं जाऊं उसके लिए बहुत चीजें उसको रेकी करेगा, आपके हैबिट्स को स्टडी करेगा, आपके रूट को स्टडी करेगा, आपके चीज, तभी वो चीजें मतलब हर चीज रेलीगेट कर देने पर अल्टीमेटली हु इज द विक्टिम? हु इज द विक्टिम? If I am supposed to follow certain things, by following that and I am safe, then it is better that I do that. Later on, ultimately it is my loss if I get hurt, if I lose something and all that. लेकिन हर जगह मतलब वही एक इसमें मैंने वो नहीं आप लोगों को स्लाइड दिखाई कि कुछ चीजों के लेवल पे
कंप्लायंस का लेवल भी वेरी करता है। डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें कोविड के समय पैरासीटामोल खाइए ठीक होगा, तो हम एक के बदले 2 खा लेंगे कि ये हो जाए, ठीक नहीं हो। लेकिन उसी तरह का फ्लाइट में जहां हमारा स्टेक रहता है बहुत, वहां हम कंप्लायंस का लेवल हमारा, आई मीन द कंडक्ट एंड बिहेवियरल पैटर्न इट इज आल्सो लिंक्ड टू दैट। फ्लाइट में स्मोक नहीं करना है, बहुत बड़े बड़े स्मोकर भी जो है दे हैव टू अडॉप्ट इट। व्हाई? Because if you will smoke, you cannot travel. So you don't want to lose your flight. In the other circuit, so that regulation, how stringent it becomes, that will actually also. So why that should come? जो हमारे self regulation पे हम चीज को कर सकते हैं, why somebody else should regulate? Why I should be fined for not wearing a helmet when I am supposed to wear it? लेकिन it's an irony. It's an irony. मास्क पहनना है, हम अपने लिए पहने, दूसरों के लिए पहने। लेकिन अब तो मतलब you know we had many such cases on mask itself. There will be arguments. Right. स्टेट की विजिलेंस स्टेट की जो विजिलेंस होती है ना, स्टेट हाँ, का हाँ। सिस्टम होता है, हाँ। वो विजिलेंस स्टेट की विजिलेंस, अब 3 तरह की विजिलेंस हो जाती है। एक हाँ। में इश्यूज होगी, एक अपनी स्टेट की होगी। स्टेट अगर रेगुलेट करता है विजिलेंस को, तो वो जज से इंडिविजुअल अगर कहीं अगर छोड़ देता है विजिलेंस को, तो स्टेट की विजिलेंस तो उसी में ये तो रहेगी ना, वो तो रहती इसीलिए ना, क्योंकि वो जानती है ना कि जो विजिलेंस का लेवल का कंप्लायंस है वो नहीं है उस तरह का, इसीलिए मेरा एग्जिस्टेंस जरूरी है। तभी वो बॉडी को बनाया गया ना, ओवरसाइट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी, इसीलिए बनाया उसको। तो यहाँ भी है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है पूरे इसमें, जीएनसीटी के पूरे फ्रेमवर्क में एक है, अलग से डिपार्टमेंट में है। तो वो बॉडी जिसलिए भी बनती है टू सी दैट अदर बॉडीज दे वर्क, दे कम, एक उसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। जो वो तो सेंट्रल विजिलेंस मैनुअल एक्चुअली मेन है वो, मतलब उसमें सब आपके कंडक्ट से रिलेटेड सब चीज दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको, इट्स अ वेरी बल्कि डॉक्यूमेंट जिसपे सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन ऐसे आपको प्रोक्योर करना है तो क्या क्या चीजें आप उसमें फॉलो करें। जैसे मिनिमम होता है कि अगर एक अमाउंट के बाद अगर आप किसी चीज को प्रोक्योर करते हैं तो यू कैन नॉट बाय इट फ्रॉम इंडिविजुअल, यू आर सपोज टू इंटर इनटू अ कोडल फॉर्मेलिटीज। कोडल फॉर्मेलिटीज की 3 आदमियों से कम आप कोटेशंस लीजिए, जो उसका लोवेस्ट हो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो ये सब विजिलेंस मैनुअल का ही पार्ट है सीबीसी का। ये इस साल पहले हमारे स्टाफ में थे और बाय नेचर को थोड़ा सा पेड न्यूज़ पे भी हमारे स्टाफ में कहीं फंस गए थे इस मामले का नेचर का लड़ने वाले का, और वो एक वजह से बच गया है। तो हमारे पास सभी के पास ऑलवेज 24 आवर्स अवेलेबल वेपन्स है हमारे पास, दिखता नहीं लड़कियों में बहुत अच्छा है, जेंट्स सबके लिए यूजर्स लेने जब करना चाहते हैं आपको उससे 5 नैनोमीटर 5 नैनो सेकंड्स भी अचानक कोई भी आपको अटैक करने आता है, लड़का और लड़की इमीडिएटली उसके ऊपर मूव नहीं होगी, 5 नैनो सेकंड्स। तो प्रैक्टिकल है, मैंने ऐसा उनके साथ मुझे शेयर किया था कि आप भी करना होगा। मैंने अपने बच्चों को बताया अचानक ही कोई आया, कोई भी नहीं, अरे कई थोड़ी देर के लिए तो पता जाएगा आपको, एक सेकंड के लिए आप कई जगह कई आदमी जैसे वो चिली पाउडर ये सब उसी का, ऐसा है ना रखने लिए टमाटर रेडीमेड कमाने दे और इसको आप चाहे हंसी मजाक से सर नहीं अभी हमारे यहाँ जैसे दिल्ली पुलिस का एक बहुत अच्छा मतलब सशक्ति स्कीम है, जिसमें जितनी हमारी वुमेन और लड़कियां स्कूल्स वगैरह में रहती हैं उनको सबको सेल्फ डिफेंस का टेक्निक्स बताया जाता है। आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी है, हर जगह जो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं उनको, और उनको उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इफ अ गर्ल चाइल्ड इज वॉकिंग अलोन, शी इज गोइंग टू कॉलेज या स्कूल कहीं जा रही है और उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर मतलब the basic objective of Sashakti is to physically empower that girl with techniques कि कैसे आप उसको हर्ट करोगे, कैसे करोगे। ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमारे पास एक डंडा भी होना टूटा था सामने 10 या कोई तो हमें लगता है कि हमारा तो फैक्ट्री
किसी रेफरेंस है आप उससे अपने आप को बच सकते हैं। वो तो अलग है। और कॉलेज गर्ल्स मैक्सिमम करते हैं ये अच्छी चीज है। नहीं, वही उनको वही सब चीजें उसमें सिखाया जाता है कि फिजिकली कैसे आप उनके अटैक करोगे, अगर उसने ऐसे आप मतलब सिमुलेटेड एक्सरसाइजेज होती है और वो बड़ा पॉपुलर है ऑलमोस्ट। Sir, I've done that as a college girl. When I used to be a student, Yes. I वो मोती बाग में मैंने साधु वासवानी स्कूल में होता है वो. I've done that. Yes, and लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इट हैज गॉन, द अमाउंट जितना लोगों को ट्रेन किया है उन लोगों ने, तो वो बेसिकली उसको चूंकि इट्स आई मीन दैट इज अ ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनको लोग समझते हैं कि हम फिजिकली ये वीक होते हैं। तो मेरा आइडिया उस चीज में ये नहीं है कि उनको ये चीज, द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस फॉर मी इज दैट यू आर फिजिकली एम्पावरिंग देम, कि आप कमजोर नहीं हो। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड दैट यू आर थिंकिंग किया है। तो और अगर ऐसी स्थिति हो गई, एंड सम ऑफ देम दे हैव एक्चुअली यूज्ड दैट, आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, आप बस में सफर कर रहे हो, अकेले आप जा रहे हो, तो वो बहुत, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कीम। आई थिंक इफ यू हैव जी, समबडी ऑनलाइन किसी का कोई सवाल है सर के लिए? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, एनीवन हैज अ क्वेश्चन फॉर सर? Okay, doesn't look like it. So I have a question for you. How do we understand vigilantism? So you talked about collective vigilance, for example, the RWAs and but increasingly we also see some kind of a moral policing of vigilantism. How should we deal with that? that's, I think moral policing is something different. वो तो उसका नैरेटिव ही अलग होता है। मैंने जो चीजें बताई हैं वो उसका बेसिक जो एक प्रिटेक्स्ट था वो था हमारे अपने इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में। इफ वी आर टॉकिंग टू सम people who are playing some roles in an institution, what should be their response to that, what kind of a level of vigilance they should maintain while performing those kind of duties and all. Right. हाँ, और collective vigilance का means again I had specified the area where it matters. It is again, it is not something where you indulge into a kind of a sensationalism. You Right. don't indulge into, you don't make an issue out of that. That's uska narrative is totally different. It is not, I would not say that that's a moral policing. वो moral policing नहीं है जिन चीजों की बात मैंने की है। No, they are not, sir. I'm yes, just because no, but because वो दूसरा मतलब yeah, you you just talk give me, about the yes, positive you give sense. me, yes. Absolutely. So वो positive sense vis-a-vis the various roles. We all play different roles. We all have different responsibilities. So roles or responsibilities के, I mean, we need to have some kind of a vigilance even at the level of family. We need to have some kind of a vigilance at the level of our children, growing up children. That also requires some kind of a vigilance. उसकी भी जरूरत पड़ती है हमें. That you are vigilant where your child is going, whether he is coming back or not, with whom he is interacting. क्या ये भी एक this also in with more and more nuclearization of family. This is all again going. We think कि उसको Cadbury का chocolate दे देना. That's where my job ends as a parent. बाकी मुझे पता नहीं वो दिन भर क्या करता है। And later on you come to know that since there was no system of an internal vigilance as a parent over some point of time, you had issues with your children. So I mean, these are vigilance and security. They are certain, I mean, how they should be used in our day-to-day life while we are performing various roles and responsibilities. And I had a context of explaining this to the audience today who are handling issues related to their institutions. That is why I talked about institutional vigilance. Otherwise, institutional vigilance may not be very relevant for Yeah. So that's what we do. Moral policing is something which is totally different. The objective is different. Yeah. I know it is. The narratives of the vigilance which I have talked is not at all there. No, not at all. So Yes, you were absolute. I have no sort of. Yes. I was just No. So I as would, because you are a police officer with such an experience. So when we, if we encounter vigilantism, which you did not mean, obviously, you were meaning positive vigilance and not in terms of curbing anybody's rights.
But we do encounter some vigilantism. If you think there is something which intrudes into your uh, privacy, as somebody said that now every right also has commensurate duties also. Yeah. If my action hurts him, I have to see that I do certain things, because if we are trying to enforce a norm of vigilance in the particular body or place, we are not trying to do it for A, B, C, or D. It is for the survival of the institution as such. It's objective. It has no element of subjectivity. And the basic philosophy behind enforcing that is to ensure that the credibility and integrity of the institution is intact. Okay, so it's a very, I would say, uh, there's no subjectivity involved into that. Mhm. You know that while I'm doing this, I'm trying to hurt the interest of A, B, or C. Right. It could hurt the interest of A, B, or C as long as it violates that protocol. Of course, it will hurt. If you are supposed to do something right, you are not doing that. So then you are indulging into something through which the institutional credibility will be hurt. If a oversight body gets into, if a those bodies which are trying to regulate other bodies also, then one action of a individual who's a part of an institution is, for example, अगर मान लीजिए किसी जगह CBI की रेड होती है, तो it is although on an individual, but that individual is a part of a institution. So it also affects the credibility of the institution. That okay, I think it has hurt the collective sentiments of rest other people who are not like him. It has hurt their collective conscience and esteem also. Right. Thank you. जैसे जो ये बेनिफिशियल महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम करवाते हैं, तो क्या इसको हैंडलिंग के माध्यम से इनसे अप्रोच कर सकते हैं कि अगर जैसे आपकी विधानसभा में करवाना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? आप लोकल पुलिस, वहाँ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के टच में ये जाइए। इनको डीसीपी ऑफिस में अप्रोच करना पड़ेगा? हाँ, उनको आप बिल्कुल आप डीसीपी से मिलिए, उनको बोलिए कि हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इनके लिए। नॉर्मली छुट्टियों में या उनके कन्वीनियंस के हिसाब से दे विल टेल यू। डिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है या एक सेपरेट यूनिट भी है, वुमेन एंड स्पेशल पुलिस यूनिट, देखकर हमसे। So in case there are no more questions here, and also from the online participants, I'm assuming there are no questions there, online participants. So, okay, so then, sir, can we conclude this session then? Yes, of course. Yeah. सर कहना चाहूंगी कि आपने इतनी सरल और सुंदर तरीके से, मैं आपकी डेफिनेशंस देख रही थी जो दोनों आपने सिक्योरिटी और विजिलेंस की जो डेफिनेशंस दी और जो आपने डेफिनेशंस यहाँ पे प्रोजेक्ट की, बहुत ही सरल। और जनरली जब हम लॉ और सिक्योरिटी विजिलेंस की बात करते हैं, एंड इफ वी लुक एट से वी गो ऑनलाइन एंड वी ट्राई टू लुक एट definitions, then obviously sometimes definitions can also be very convoluted and quite packed, in a sense that it becomes quite difficult to understand the basic fundamental concept. So in that sense, sir, I think the entire style of how you presented in terms of making those concepts very accessible and connecting them to the very everyday aspects was I think very good. At least I could as a commoner connect to those things, and so that was really helpful. And as I earlier mentioned, that it was rich in terms of course your experience that you bring in when you give a talk on security and vigilance, a subject like this, as well as of course your academics, which you certainly it was showing that you are also an academic. I think I would want to emphasize, I'd want to sort of say that. Plus also I think that our participants both here as well as online would have benefited from this for sure. So sir, with that I want to give our rich thanks to you. Thank you so much for coming and giving your time today, sir. Thank you.
Very nice.